اور وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں آٹا اور چینی بحران کی فورنسک رپورٹ تاخیر کا شکار تو ہو سکتی ہے لیکن آئے گی ضرور. رپورٹ نہ آئی تو حکومت کا امیج خراب ہوگا. عمران خان نے کہا تھا انہیں نہیں چھوڑوں گا. اب امتحان ہے. چینی آٹا اور قرض چور اپنے انجام کو پہنچیں گے. شیخ رشید اپوزیشن پر تنقید کرتے ہوئے بولے شہباز شریف سستی شہرت کے لیے لیپ ٹاپ پر بیٹھ کر تصویریں بنوا رہے ہیں. فورنزک رپورٹ 25 سے 5-10 دن لیٹ ہو سکتی ہے, آئے گی ضرور. اگر زیادہ دیر سے ہوگی پھر بھی لوگ باتیں کریں گے. آئی پی پی کے چور, قرضہ معاف کرانے والے چور, شوگر اور فلورنگ کے چور انشاءاللہ تعالی اپنے مقام کو پہنچیں گے. یہ اب حکومت کا امتحان ہے. عمران خان کا بیانیہ یہ تھا کہ ان کو نہیں چھوڑوں گا. اگر یہ حکومت ان کو چھوڑے گی تو اس کا امیج خراب ہوگا. اس کو تانے سننے پڑیں گے. وہ لنگڑی لولی اپاہج اپوزیشن جو لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھے, لیپ ٹاپ میرا وہ دوست ہے شہباز, اس نے کبھی استعمال ہی نہیں کیا, اس کو آتا ہی نہیں. دیکھیں کتنی سستی شہرت ہے. جو لیپ ٹاپ اس کو آتا نہیں اس کے سامنے تصویر کھنچوا رہا ہے. اور ابھی 2 پیشیاں اور میں نے کہا ویسے ہی جانے دو, دم درود کے صدقے. کورونا ہے, رمضان ہے, روزے گھر رکھے. یہ بڑے لوگ منی لانڈر, ایک آدمی بھی کرپشن کے کیس میں اس وقت ملک کی جیل میں نہیں ہے. اومنی گروپ سے لے کے آصف زرداری تک کوئی آدمی, سب کی ضمانتیں ہیں. یہ کرونا وائرس دنیا کی سیاست بدل دے گا. ایک نیا ورلڈ آرڈر آئے گا دنیا میں. میں مراد علی شاہ سے لاہور ریلوے اسٹیشن پہ اپیل کرتا ہوں کہ تمام دفعہ 144 کے لوگ جو پکڑے گئے ہیں ان کو رہا کرے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے رات گئے بغیر پروٹوکول لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور لاک ڈاؤن کی صورتحال کا جائزہ لیا. وزیر اعلیٰ نے بعض ناکوں پر گاڑی روک کر سیکیورٹی اہلکاروں کو فرائض کی انجام دہی پر شاباش دی, جبکہ بعض سڑکوں پر زیادہ ٹریفک دیکھ کر برہمی کا بھی اظہار کیا. عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ ایسے دوروں سے زمینی حقائق سے آگاہی ملتی ہے. شہریوں کو سمجھنا چاہیے کہ گھر ہی ان کے لیے محفوظ ہے. معاون خصوصی فردوس عاشق امان نے کہا ہے غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ ملک میں کورونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں. لاک ڈاؤن پر تیاری کے ساتھ عمل کرایا جانا ضروری تھا. فردوس عاشق امان نے علماء کو اہم کردار ادا کرنے پر ان کی تعریف کی. چل رہی ہے کہ کورونا کا پھیلاؤ پاکستان میں بڑھ گیا. لاک ڈاؤن جو تھا وہ انکریمنٹل ہوتا, سٹیپ بائی سٹیپ تیاری کے ساتھ ہوتا تو اس کے زیادہ مؤثر نتائج سامنے آتے. دن رات جو کوشش اور کاوش ہے وہ اس بات کی طرف ہے کہ ہم کورونا کو بھی روکیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو بے روزگار ہونے سے بھی بچائیں. وفاقی وزیر قانون نے آرڈیننس پر آرڈیننس لانے کی وجہ کورونا گردی کو قرار دے دیا ہے. عالمی وبا کے سامنے انسانی بے بسی کا اعتراف بھی کیا. فروغ نسیم کو میڈیا سے بات کرتے ہوئے فردوس عاشق امان بھی خوب یاد آئیں. اسلام آباد سے دیکھیے عثمان خان کی رپورٹ. وفاقی وزیر فروغ نسیم کی اسلام آباد میں نرم گن پریس کانفرنس, اپنی وزارت کی کارکردگی کے گن گا دیے. 18 مہینے میں لا منسٹری کے پاس 60,500 آفیشیل ریفرنسز یعنی آفیشیل ریسیٹس آئی ہیں. لا منسٹری کی جو بیٹنگ ایوریج ہے وہ 99.999% ہے. بریڈ مین سے بھی شاید تھوڑی بہتر ہے. کورونا کے معاملے پر وزیر قانون کا قانون قدرت کے سامنے اظہار بے بسی. کووڈ-19 دنیا بھر کے لیے ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہے اور یہ جس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات نے یہ بتا دیا کہ جو اصل طاقت ہے وہ اللہ کی ذات کے ہاتھ میں ہے. کسٹم ٹریبیونل میں رشوت کا انکشاف. ساتھ ہی کہا کارروائی کے لیے درکار شواہد موجود نہیں. پارلیمنٹ کا اجلاس نہ بلانے اور آرڈیننس پر آرڈیننس لانے کی وجہ کورونا گردی قرار. وزیر قانون کو معاون خصوصی اطلاعات کی یاد بھی ستاتی رہی. ڈاکٹر فردوس عاشق امان صاحبہ بڑی یاد آ رہی ہیں. وہ سیالکوٹ میں گئی ہوئی ہیں, راشن بانٹ رہی ہیں. آج آپ ہوتی ہیں تو اور 4 چاند لگ جاتے ہیں ہمارے اس پریس کانفرنس کو. آپ میڈیا کو بتایا گیا کہ پارلیمان کا اجلاس نہ ہو سکا تو پھر نیب قانون میں توسیع کے لیے متبادل آپشن پر غور کیا جائے گا. اور آپ کو بتائیں گے آج کراچی میں کورونا سے سب سے زیادہ 8 ہلاکتیں ہوئیں. وزیر اعلیٰ سندھ نے صورتحال بتاتے ہوئے کہا کہ 24 گھنٹے میں 1520 ٹیسٹ کیے ہیں, 182 مثبت آئے ہیں. تو آج کراچی میں کورونا سے سب سے زیادہ 8 ہلاکتیں ہوئی ہیں. پچھلے 24 گھنٹوں میں 1520 ٹیسٹ ہوئے ہیں. اس طریقے سے ٹوٹل ٹیسٹ کی تعداد 24,458 ہو گئی ہے. کل تک 2355 کیسز پازیٹیو تھے. پچھلے 24 گھنٹوں میں 182 کیس پازیٹیو آئے ہیں. پچھلے 24 گھنٹوں میں 8 ہلاکتیں ہوئی ہیں کرونا کی وجہ سے.
जब से ये वबा फैली है, यानी 26 फरवरी से, पहली डेथ सिंध में 19 मार्च को हुई थी। 19 मार्च से लेके आज तक ये पिछले 24 घंटे हलाकतों के हिसाब से सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई हैं। हमें मज़ीद जो आसानियाँ करनी होगी लोगों के लिए, लेकिन उसके साथ साथ जैसे मैं हर वक्त कहता हूँ कि हमने एक नए तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है जब तक कि इस वबा का इलाज हमें ना मिल जाए। वज़ीर आला सिंध ने कोरोना के दौरान सियासत से बाज रहने के लिए हाथ जोड़े तो सिंध में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी ने भी मुराद अली शाह के सामने हाथ जोड़ लिए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिरदौस शमीम नकवी ने कहा, पीपल्स पार्टी ने मुल्क और सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया है। बोले, हाथ जोड़कर कहता हूँ सिंध में करप्शन बंद करो। फिरदौस शमीम नकवी का ये बताना। कोरोना की वजह से हाथ मिलाना मोहतात हुआ तो सिंध की सियासत हाथ जोड़ने पर पहुंच गई। पहले मुराद अली शाह ने हाथ जोड़कर अपील की कि खुदारा अभी सियासत ना करें। इस वक्त मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मगर सियासतदानों को मुराद अली शाह का हाथ जोड़ना भी सियासत ही लगा और पीटीआई सिंध के अपोजिशन वालों ने जवाब में हाथ जोड़कर करप्शन रोकने की अपील कर दी। उनसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, पाकिस्तान का तुम लोगों ने बहुत बेड़ा गर्क कर दिया, सिंध का बहुत बेड़ा गर्क कर दिया। खुदा के वास्ते तुम हुकूमत हो, आवाम की तवक्कुआत को पूरा करो, पैसे खाने बंद करो। इंसाफ हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिरदौस शमीम नकवी ने कच्ची आबादियों को कोरोना से बचाने के लिए मशवरा भी दिया। कच्ची आबादियों में सोशल डिस्टेंसिंग मुमकिन नहीं। जिस शख्स को हुआ है उसको तो आप ले जाएं आइसोलेशन सेंटर, और जो शख्स उसके साथ रहते थे उनको ले जाएं क्वारंटीन फैसिलिटी और उस इलाके को सील कर दें। एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ सियासतदानों का रोना। शहरी हैरान हैं कि सियासी महाज से कोरोना के खिलाफ जंग हो रही है या ये आपस में उलझे पड़े हैं। वज़ीर आला सिंध ने वफाकी वज़ीर असद उमर को जवाब दिया है कि उन्होंने किसी मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं की। वज़ीर आज़म इमरान खान और असद उमर ऐसा समझते हैं तो एहतजाज करता हूँ। वहाँ से उठते हैं, हम बाहर निकलते हैं और आधा घंटा भी नहीं लगता तो हमें ऐसे लगता है कि हमने कोई ऐसा फैसला कर दिया जो सबकी मर्जी के खिलाफ था। शाम को टीवी के ऊपर सियासत होती है, नहीं होनी चाहिए। क्या वफाक चाहता कुछ और है और सिंध सरकार करती कुछ और है? वफाकी वजीर असद उमर ने बगैर नाम लिए सिंध सरकार पर उंगली उठाई तो वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जवाब दिया, अगर मुआहदे में किसी भी चीज की खिलाफ वर्जी की हो तो खुद जिम्मेदार हूँ। इन्होंने वजीर आजम और असद उमर से इस बयान पर एहतजाज भी किया। दूसरी जानिब वजीर आला सिंध ने SOPs पर अमल दरामद करने वाली 52 इंडस्ट्रीज को पैदावारी अमल शुरू करने की इजाज़त दे दी है, जिनमें साइट लांडी, कोरंगी, मलीर, बिन कासिम, कोटरी जोन की इंडस्ट्रीज शामिल हैं, जबकि कोरोना फंड्स के लिए महकमा सेहत के मुलाजमिन की तनख्वाहें नहीं काटी जाएंगी। पेशावर के ताजर की दरिया दिली, लॉकडाउन से परेशान अपने किराएदारों को 2 माह के किराए में छूट दे दी। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन से कारोबार की बंदिश, दुकानदारों को किराया अदायगी मुश्किल हो गई। वज़ीर आला ने अपने कमर्शियल जायदाद के 2 माह का किराया माफ़ किया तो दीगर ने भी अपने किराएदारों की दाद रसी शुरू की। पेशावर सदर में 3 प्लाजों के मालिक ने 2 माह तक किराया ना लेने का ऐलान किया। फी दुकान 30 से 90 हज़ार रुपए माहाना किराया है। भी यही फैसला किए कि हमारा जितना भी प्लाजे है और उसमें जितना किराएदार है वो सबको हम 2 महीने का किराया माफ़ कर दें। दुकानदार 2 माह किराए का बोझ सर से हटने पर खुश तो हैं, ताहम साथ ही हुकूमत से यूटिलिटी बिलों और टैक्सों में छूट और दीगर मुराद का मुतालबा कर रहे हैं। शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे लिए किराया माफ़ कर दिए और मैं हुकूमत से भी दरख्वास्त है हमारी कि हमें बिलों में और रिलीफ दे दे। दुकानदारों का कहना था कि हुकूमत दुकानें खोलने के लिए फौरी इक़दामात करे ताकि बच्चों के लिए 2 वक्त की रोज़ी कमा सकें। कैमरामैन असद खान के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। लाहौर रेलवे स्टेशन पर कुलियों में राशन की तकसीम के दौरान कोरोना से बचाव के इक़दामात को नज़रअंदाज कर दिया गया। वफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद का कहना था कि कोरोना से डरा कर सियासत नहीं होनी चाहिए। मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट। बेरोजगार रेलवे कुलियों में राशन बांटने की तकरीब जलसे में बदल गई। समाजी फासला रखना तो दरकिनार, कुली तो एक दूसरे से चमटे नजर आए।
वज़ीर रेलवे ने भी मास्क पहने बगैर शिरकत की। शेख रशीद अहमद का कहना था कि कोरोना वायरस के बारे में एहतियात और रोजगार साथ साथ चलने चाहिए। लॉकडाउन ऐसा हो कि लोग भूख से मरे भी ना। असल मसला सफेद पोश मतवसत तबके का है। असल मसला उसका है जो किसी से मांग नहीं सकता, हाथ नहीं फैला सकता और जिसके पास कोई रोजगार नहीं है। दूसरी तरफ कुलियों ने राशन मिलने पर शुक्रिया तो अदा किया, मगर उनका कहना था कि अगर यही राशन उनके घरों तक पहुंच जाता तो उनको धक्के न खाने पड़ते। घर में पहुंचना चाहिए था, बिजली के बिल घर में पहुंच सकता तो ये नहीं पहुंच सकता। डर तो लगा है, हम क्या करें, छोटे छोटे बच्चे मजबूर होके आए हैं ना। वज़ीर रेलवे ने इस मौका पर तख्तान बॉर्डर के लिए ट्रेन की बोगियों में बने अस्पताल भेजने का ऐलान भी किया। कैमरामैन अज़हर इकबाल के साथ मोहम्मद लुकमान। मुश्किल की घड़ी में समा मुस्तहिक अफराद की आवाज़ बन गया। कोरोना वायरस के बायस परेशान हाल कुलियों की रिपोर्ट समा ने दिखाई तो पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवे राशन तकसीम करने पहुंच गए। फैसलाबाद से अब्दुल अहद की रिपोर्ट देखिए। चूल्हे में तो आग नहीं जला रही, पकाएं क्या, लाएं कहाँ से कि गाड़ियाँ बंद है। पैंसठ साल से फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पे बोझ उठाने वाले कुल्ली बाबा नूर मोहम्मद की बेबसी को समा ने दिखाया तो हुकूमती नुमाइंदा को ख्याल आया। ट्रेन तो ना चली मगर पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवे सैलानी के ताउन से इनके पेट भरने का सामान लिए पहुंच गए। समा टीवी ने जो है वो हमारी तवज्जो दिलाई। फैसलाबाद स्टेशन के ऊपर भी कुलीज मौजूद हैं और आपकी ही खबर के ऊपर जो है वो यकीनन इसके ऊपर एक्शन लिया गया। इसका क्रेडिट भी जो है वो समा को जाता है। जिंदगी की ट्रेन थोड़ी संभली तो बाबा नूर मोहम्मद शुक्र अदा करते नहीं थकते। जिन्हें राशन दे दिया उसको अल्लाह पाक और दे। अब हमारे हम खुद भी बच्चे भी भूखे मरते थे। रेलवे स्टेशन पे 100 से ज़ायद कुलियों में राशन तकसीम किया गया। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी में मजीद सख्ती कर दी गई है। अब कराची वाले खवातीन, बच्चों, बूढ़ों को भी मोटरसाइकिल पर लेकर नहीं निकल सकते। सहाफ़ी और पुलिस एहलकारों को भी इस्तिस्ना नहीं। तफसीलात शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट में देखिए। डबल सवारी अब नहीं अलाउ करेंगे मोटरसाइकिल पे, सिवाय अगर कोई खातून हो, फीमेल मेंबर हो किसी की, हम नहीं करेंगे। वो 3-4 बच्चों के साथ नहीं अलाउ करेंगे। 4 दिन बाद ही वजीर आला सिंध का ये फैसला और सख्त हो गया। अब खवातीन को भी मोटरसाइकिल पर साथ जाने की इजाजत नहीं। कराची वालों का खानदान में घूमने निकलने के लिए अब कोई बहाना नहीं चल रहा। बिला जरूरत खवातीन और बच्चों को साथ लेकर निकलने वालों को जगह जगह लगे पुलिस के नाकों पर रोककर वापस भेजा जा रहा है और कई शहरियों को तो पुलिस ने सजा के तौर पर कैंप में ही बिठा दिया। 100 से ज्यादा लोगों को रोककर जुर्माने के तौर पर 520 रुपए का चालान किया गया। चला मुझे रास्ते में बीमारी अस्पताल से आ रहे हैं। अच्छा। अभी पता चला, मुझे नहीं पता था। कैसे जाएंगे जब जाने नहीं देंगे तो भाई जाहिर सी बात, फिर अपने घर बैठेंगे। मजबूरी थी, जा रहे नहीं जाने दे रहे, घर जा रहे हैं वापस। और क्या कर सकते हैं, हमारे आप ये बताए, परेशानी तो होगी ना। कराची वाले गुस्से में तो बहुत हैं, मगर अब भी पुलिस ने हल्का हाथ रखा हुआ है, वरना महकमे दाखिला सिंध ने वाज़े हिदायत की हैं कि मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर बच्चे, खवातीन, सहाफी या पुलिस वाला जो भी निकला 6 माह के लिए जेल जाना पड़ेगा, जुर्माना भी होगा। कराची पुलिस चीफ ने अपने अफसरान और मुलाजमीन से कहा है कि पाबंदी पर खुद भी अमल करें और शहरियों से भी करवाएं। गवर्नर पंजाब का कोरोना से लड़ने वालों को सलाम। अस्पतालों के अमले को हिफाजती किट्स का तोहफा देने पहुंच गए। कहा लॉकडाउन में गरीबों, जरूरतमंदों को तन्हा नहीं छोड़ सकते। रावलपिंडी से उमर बिन आसिफ की रिपोर्ट। पंजाब डॉक्टरों, नीम तिब्बी अमले और रेस्क्यू 1112 को खराज तहसीन पेश करने रावलपिंडी पहुंच गए। चौधरी सरवर ने अस्पतालों के सरबराहान को हिफाजती किट्स फराहम की। कहा मुश्किलात के मारे गरीबों को भी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। पूरा जो तिब्बी अमला है जानें बचाने के लिए तारीखी रोल जो है वो अदा कर रहे हैं। हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। 5 लाख राशन तक इंशाअल्लाह रमज़ान शरीफ तक हम जो है लोगों तक जो है राशन जो है वो तकसीम कर देंगे। गवर्नर पंजाब ने सियासत पर भी थोड़े लफ्जों में बहुत कुछ कह दिया। दुनिया में एक ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें सियासी इख्तलाफात नहीं होते, ग्रुप बंदी नहीं होती, लेकिन इमरान खान की क़यादत में तमाम जो PTI के लोग हैं या वर्कर्स हैं वो मुत्तहिद हैं।
चौधरी सरवर ने ये भी बताया कि इमदाद हकदारों तक पहुंचाने के लिए नादरा और दीगर इदारों की मदद से पूरी छान फटक की जाती है। कैमरामैन रॉबिन्सन नजीर के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। मुस्तफ़ा कमाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इमरान खान साहब के ये वफाकी हुकूमत के की ऐसी कारकर्दगी रही है, इस पूरे ऐसी इतनी कन्फ्यूजन रही है कि हमें लामहवाला सिंध हुकूमत के चंद इक़दामात की तारीफ करनी पड़ रही है। ये काम हमसे कोई और नहीं, 12 सालों के उनके कारनामे एक तरफ और ये 2-3 महीनों में ये कोरोना वायरस के चक्कर में हमें इन जुमलों को अदा करना पड़ता है, जैसे कि हम मुनाफिकत कर नहीं सकते। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी मौका है कि आपस में मिल बैठकर एक मौक़िफ़ अपनाने की ज़रूरत है। सियासत से बालातर होकर वफाक और सूबे सारे मिलकर एक कोरोना के हवाले से एक मौक़िफ़ अपनाएं। अल्लाह का शुक्र है कि कोरोना अभी तक आया नहीं है हमारे पास उस तरीके से जिस तरह से दुनिया में आया है। अल्लाह ना करे आए, अल्लाह ना करे। अब ये चंद 100 केसेस में हमारी सारी कली खुल गई है। अल्लाह ना करे हमारे पास आए, अल्लाह रहम करे। मैं कितने लोगों को जानता हूं, उनको क्वारंटाइन कर रखा है, दिन तक उनके पास टेस्ट करने ही नहीं आ रहे। फलां डिस्ट्रिक्ट से भाई बंदा चलेगा टेस्ट किट लेकर, बंदे पहले बंद कर दिए सिंध में और अभी जो है वो उनका टेस्ट ही नहीं हो पा रहा। अजीब हाल है। एनीवेज इसकी डिटेल में नहीं जाते। तो मैं यहाँ पे तमाम कारकुनों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग यहाँ पर आए हैं खून देने के लिए। और मैं इकबाल भाई को, काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर जो है, जो कि बहुत बड़ा काशिफ इनके साहबजादे का नाम है इकबाल भाई के, जो कि जिनकी डेथ हुई इसी थैलेसीमिया के ब्लड ट्रांसफ़र में लंदन में, उनके नाम पर इन्होंने ये इदारा बना रखा है। अल्लाह ताला इनसे बहुत बड़ा काम ले रहा है। हमने आज, और ये मैं इनका बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमारी बात मानी और हमारी इस खदमात को लेने के लिए तैयार हुए। मैं इनका इस वाली बात पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पर ये आए हैं यहाँ पर और हमारे साथ हैं। मैं इकबाल भाई से रिक्वेस्ट करूँ। और मैं यहाँ मुस्तफ़ा कमाल कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सरगोधा में लॉकडाउन के दौरान दुकानदार शटर गिराकर कपड़ा फरोख्त करने में मसरूफ हैं। पुलिस ने पहुंचकर दुकानें खोली तो अंदर खवातीन खरीदारी कर रही थी। मज़ीद जानेंगे नईमुर रहमान से। नईम, ये क्या मामला हुआ? सरगोधा का 2 ब्लॉक जहां कपड़े की बहुत बड़ी मार्केट है, ताजरों ने आज खुद लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करते हुए मुतअद्दिद दुकानें खोल दी, जिस पर पुलिस जब बाजार में आई तो ताजरों ने दुकानों के शटर नीचे कर दिए। पुलिस ने शटर उठाकर जो दुकानें थी उनमें से खवातीन गाहकों को जो है वो बरामद कर लिया और ताजरों को लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करने पर गिरफ्तार करके थाना सिटी मुंतकिल कर दिया है। जी, अपडेट कर रहे थे। और मुल्तान के बेघर शहरियों के लिए कायम शेल्टर होम बंद कर दिया गया। वबा के खौफ में मुब्तला अफराद सड़कों पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। राशिद हमीद की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस के फैलाव ने बेसहारा आवाम के सरों से छत छीन ली। मुल्तान में बेसहारा अफराद के लिए बनाया गया शेल्टर होम बंद कर दिया गया। मजबूर और बेबस अफराद हुकूमती तवज्जो से भी महरूम हैं। शेल्टर होम बंद हो गए जी, तो हम खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं बस। तो हुकूमत की तरफ से तो हमें कोई मदद नहीं मिल रही है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक शदीद ज़रूरतमंद अफराद को बेआसरा नहीं किया गया। हमने उनको कम किया है, लेकिन जो ऐसे लोग हैं जिनका कोई रहने का बंदोबस्त नहीं है वो अभी भी वहीं पे हैं, उनको हम लुक आफ्टर कर रहे हैं SOPs के मुताबिक। मौसम की सख्तियों को बर्दाश्त करने वाले बेसहारा अफराद मुश्किल वक्त में हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर हैं। कैमरामैन महबूब चौधरी के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। अभी के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।